My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you all. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। We all come to the end of this year. अब हम सब जो हैं इस वर्ष 2000 में पहुंच रहे हैं। What we have to do this time? इस समय हमें क्या करना है? If you read Psalm 111, 2-4, it says like this. अगर आप भजन संहिता 111 उसके वचन 2 से 4 को पढ़ें तो यहाँ यूं लिखा है। Shall I read these verses for you? मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ लूं। The works of the Lord are great, sought out by all those who delight in them. His work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful works to me remember. The Lord is gracious, merciful, and full of loving compassion. यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्म का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। Yes, my brothers and sisters, the Lord has done great things all through this year. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पूरे वर्ष परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। What we read in the verses, let me tell you 3 things from that. जो हमने वचन पढ़ा उससे मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। Number 1, his works were very great. पहली चीज, उसके जो काम है बड़े ही वैभवशाली हैं। Second thing, his works were honorable and glorious. दूसरी बात, उसके कार्य जो हैं ऐश्वर्यमय होते हैं। And third thing is, his works were wonderful. और तीसरी चीज, उसके जो कार्य हैं वे आश्चर्यमय होते हैं। We have to remember every good thing we have received from the Lord. आपको हर एक उन भली चीजों को जो परमेश्वर से आपने पाई हैं स्मरण करना है। Now we are going to glorify his name. और अब हम उसके नाम को महिमा देने वाले हैं। Yes, even in your own life through the TV program, campaigns, magazine of Jesus Calls, and in the Jesus Calls ministry also, God has done great things. हाँ, आपके भी जीवन में परमेश्वर ने यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा, टीवी कार्यक्रम के द्वारा, मैगजीन के द्वारा और दूसरे रूप से अनेक बड़े बड़े काम किए हैं। Honorable and glorious things. जो कि ऐश्वर्य के और भव्य हैं। And wonderful things. और वो अद्भुत आश्चर्य के काम भी हैं। Yes, now we are going to praise God from all our hearts. हाँ, इस समय हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। If you read Romans chapter 5 verse 20, अगर आप रोमियो 5 उसके वचन 20 को देखें, it says, where sin abounded, the Lord's divine grace was much more abundant. वहां पर लिखा हुआ है कि जब अपराध बहुत हो वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। In the women's meeting, so many ladies used to come to the meeting and testify about the change in the hearts of their husbands. जब महिलाओं की सभा होती है, बहुत सी बहनें वहां आकर के इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके पतियों के हृदयों को बदला है। My husband was a drunkard for so many years. मेरा पति तो कई सालों से शराबी था, But God touched his heart through the prayer of so many God's people, and also God heard the cry of myself. परमेश्वर ने बहुत से लोगों के जिनने परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना को भी सुना, उसका जवाब दिया। And he changed his life completely right now. और उसने पूरी तरह से उसके जीवन को बदल दिया है। Our home is blessed with the presence of God. We are all enjoying the salvation of the Lord Jesus has brought to our family. अब हमारा जो परिवार है परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया है और जो उद्धार उसने हमारे परिवार में लाया है उसके आनंद को हम ले रहे हैं। So many people are changed in their hearts and they have received the transformation in their lives. बहुत से लोगों के हृदय बदले हैं और उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन को पाया है। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, what about you? आपके बारे में क्या? You have to thank God for what all He has done in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में जो कुछ उसने किया है उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Do you feel that your sins are forgiven? क्या आपको लगता है कि आपके पाप माफ हुए हैं? And thank God with all of us together.
हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। And secondly, और दूसरी बात, God's love is mysterious. परमेश्वर का जो प्रेम है वो रहस्यमय है। If you read 2 Corinthians chapter 5 verse 14, अगर आप दूसरा कुरिन्थी 5:14 को पढ़ें, he pours his divine love into our hearts and into our lives. वह जो है अपने उस ईश्वरीय स्वर्गीय प्रेम को हमारे हृदय और जीवन में उंडेलता है। When we receive the love of Christ into our hearts, जब हम अपने हृदयों में यीशु के प्रेम को पाते हैं, oh, our lives are completely transformed. तो हमारे जीवन पूरी तरह बदल जाते हैं। When I was 16, till then I never knew anything about being filled with Christ and His presence. 16 साल की उम्र तक मैं यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह से भरने के बारे में कभी भी नहीं जानती थी। I was just a nominal Christian, that's all. मैं तो बस एक नामधारी ईसाई मसीही थी। I was going to church मैं बस चर्च में जाती, as a child to the Sunday school. एक बच्ची के रूप में संडे स्कूल जाती, Everything was there, वहाँ सब कुछ था जीवन में, but I never knew about salvation and the love of God having in our life. लेकिन हमारे जीवन में उद्धार और परमेश्वर के प्रेम के होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। But one day Jesus came into my room. एक दिन यीशु मेरे कमरे में आए He just showered His love into my life. और उसने अपना प्रेम मेरे जीवन में उंडेल दिया। When I received the love, जब मैंने उस प्रेम को पाया, oh, my heart was bubbling with joy. तो मेरा हृदय जो था आनंद के मारे उछलने लगा। Till then, I had never experienced that love at all in my life. तब तक मैंने उस प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कभी नहीं किया था। Jesus came into my heart, यीशु मेरे हृदय में आए, filled my heart with His love. मेरे हृदय को अपने प्रेम से भरा I was a completely different person from then on. और उस दिन से मैं एक बिल्कुल अन्य फर्क व्यक्ति बन गई। You can also be changed. आप भी बदल सकते हैं। Receive the love of God. Right now, it's coming to you. इसी समय परमेश्वर के प्रेम को जो आपके पास आ रहा है स्वीकारें। The Word of God has power in it. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। Through His Word, the Lord Jesus is pouring His love towards every one of you who are asking for that life. और इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो है अपने प्रेम को हरेक के जीवन में और उस आनंद को उंडेल रहे हैं जो उसकी मांग कर रहे हैं। When you are filled with His love, you will be a different person, completely transformed. जब आप इस प्रेम से भर जाएंगे तो आप पूरी तरह से बदले हुए एक नए मनुष्य बन जाएंगे। What a glorious thing it is. ये कैसी महिमा की बात Receive है। this blessing. इस आशीष को पाइए। Right now it's available. इसी समय वो उपलब्ध है। And also one more thing we read in Romans 4:17. एक बात और जो हम रोमियो 4:17 में पढ़ते हैं वो ये है, God calls those things which are not there as if they are there. परमेश्वर उन चीजों को जो वहां है ही नहीं ऐसे उच्चारता और पुकारता है मानो वहां है। Abraham and his wife Sarah had no children at all, अब्राहम और उसकी पत्नी सारे की कोई संतान नहीं but they थी, believed this promise. लेकिन उनने उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास That's why किया God blessed them. और तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। You may also say, I have no job, आप भी कह सकते हैं मेरे कोई नौकरी नहीं है, not getting a life partner, मुझे एक जीवन साथी नहीं मिल रहा है, not getting a child, मैं एक संतान नहीं पा रही हूँ, nothing, 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 everywhere nothing. कुछ भी नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं दिखता। But today, लेकिन आज remember याद रखिए that God is going to bless you with all His blessings. Whatever you say, I have not received, you are going to receive. परमेश्वर आपको हर एक आशीष से भरेगा। आप जो भी कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर वही आशीष आपको Many देगा। of you have received this blessing this year, isn't it? आप में से अनेकों ने ये आशीषों को इस वर्ष में पाया है ना। Are you keeping silent even after receiving this blessing? इन आशीषों को पाने के बाद भी क्या आप चुप हैं? Remember that you have to praise God from the bottom of your heart. याद रखिए कि आपको अपने पूरे हृदय से उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करनी है। And finally, और आखिर में according to Romans 8:36 and 37, रोमियो 8:36 और 37 के you may be अनुसार going through tribulations, trials, and so many unwanted, unhappy events in your lives. हो सकता है कि आप नाना प्रकार की परीक्षाओं और तकलीफों और जीवन के उन इस घटनाओं से जा रहे हैं जो आप नहीं चाहते। But with the help of the Lord, you can come out of all those things and have a victorious life. लेकिन परमेश्वर की सहायता से आप इन सारी चीजों से बाहर निकल करके एक जयवंत जीवन को पा सकते You हैं। have received all these blessings, isn't it?
आपने इन सारी आशीषों को पाया है ना? God has blessed you with all these blessings. परमेश्वर ने इन सारी आशीषों से आपको आशीषित किया है। So now we are going to thank God from the bottom of our heart for what all the goodness and mercy we have received from Him. तो इसलिए जो भलाई और करुणा हमने उससे पाई है, उसके लिए हम अपने हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करेंगे। Remember what all the things you have received from the Lord. याद करें परमेश्वर से आपने क्या कुछ पाया है। And now we are going to pray और अब हम प्रार्थना करेंगे and tell the Lord, Lord, thank you. और प्रभु से कहेंगे धन्यवाद प्रभु जी, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, we thank you for your love, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते your हैं, goodness, आपकी भलाई के लिए, your mercy आपकी करुणा के लिए, towards all of us, your children. जो आप अपने समस्त बच्चों की ओर रखते हैं। What all the things you have done, we are so grateful to you, Master. आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके अति आभारी हैं स्वामी। We thank you, Father, for saving so many people throughout the whole year. इस पूरे वर्ष अनेक लोगों को बचाने उद्धार देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु We जी। thank you, Father, for all the goodness and mercy you have showered upon your people all through this life. इस पूरे वर्ष भर आपने अपने लोगों के ऊपर जो भलाई और करुणा की है उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। All through this year. इस पूरे वर्ष भर के लिए प्रभु। Yes, throughout this year. हाँ प्रभु, पूरे वर्ष में आपने Your children have been blessed abundantly. आपकी संतान अतिरेक रूप से आशीषित हुए हैं। Thank you, Lord. You have saved so many people. धन्यवाद प्रभु, आपने अनेकों को बचाया। And also remember all the people who are yet to be saved. और प्रभु जी उन लोगों को स्मरण करें जिनको अभी भी उद्धार पाना है। Bring them also to your knowledge, Master. हम उन्हें भी आपके ज्ञान में लाते हैं स्वामी। Thank you, Lord, for the love you have showered upon your people. धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो आपने अपने लोगों पर उंडेला है। For all the blessings you have showered upon every one of them in a beautiful way, in a miraculous way. आपने अद्भुत तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से हर एक उन आशीषों को जो लोगों के जीवन में उंडेला, आपका धन्यवाद। And also for removing all the tribulations and trials and temptations and made them happy and have a victorious life. और आपका धन्यवाद प्रभु जी, अपने लोगों के जीवन से आपने नाना प्रकार के दुखों, मुसीबतों और परीक्षाओं को दूर करके उन्हें प्रभु बाहर निकाला, उन्हें जयवंत जीवन दिया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। We all unite our hearts and give you all our thanks, Father. हम अपना हृदय एक करके आपको धन्यवाद देते हैं पिता। Hallelujah. 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 हालेलुया। Lord, one more time I pray for your children right now. प्रभु जी एक बार फिर से मैं आपकी संतानों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। Still if they need in their life salvation, अगर अभी भी उनके जीवन में आपके उद्धार की आवश्यकता है, or victorious life, एक जयवंत जीवन की आवश्यकता है, or health in their bodies, या उनके शरीरों में स्वास्थ्य चाहिए, or transformed lives, या फिर एक परिवर्तित जीवन चाहिए, bless them. उन्हें आशीष दें। Bless every such people. हर एक ऐसे लोगों को आशीष दें। Bless them, Father. ओ पिता, उन्हें आशीष दें। Lord, lay thy mighty hand upon each one of them who want this transformation and blessings. प्रभु जी, जिन किसी को अपने जीवन में इस बदलाव और आशीष की आवश्यकता है, आप अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रखें। We give you all the हम glory. आपको सारी महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.